वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉइटस इंटरप्टस जिसे विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं वहां पे छोड़ा था। कॉइटस इंटरप्टस सो इंटरप्ट करना है। In this process, male partner withdraws penis from the vagina before the semen is released. हमने आगे ही पढ़ा था semen is a mixture of fructose enzymes and the secretion of seminal vesicle and along with sperms is known as semen. And वो release हो उससे पहले the male partner has to ejaculate, the penis has to withdraw and इसीलिए इसको withdrawal method भी बोलते हैं. The next is lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea, lactation here word resembles the memory glands, right? So you can remember this by words also. आप शब्दों से भी याद रख सकते हो. जैसे लैक्टेशनल एमोनेरिया तो आपको याद आ जाना चाहिए कि कुछ मेमोरी ग्लैंड्स के रिलेटेड बात हो रही है. आफ्टर पार्चुरेशन मेमोरी ग्लैंड सिक्रीट्स मिल्क्स एंड फॉर दिस 6 months देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन सो द चांसेस आर नॉट देयर. मतलब ये जो मान लो पार्चुरेशन हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद 6 महीने तक देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, नो मेंस्ट्रुएशन. क्यों? क्योंकि सारा जो फोकस होता है बॉडी का इज ऑन जो बच्चा आया है उसके फीडिंग पे होता है एंड नॉट ऑन दैट थिंग्स. तो उस टाइम पे देर आर very less chances, so it is the best time for contraception. If you want to prevent pregnancy, then you can use this 3 methods which are natural. तो ये natural methods है, इसीलिए इनका 100% successful होना is not necessary. But barrier method is one of them which has a surety and sometimes even it also fails. So आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि which method is more reliable. So you have to go for option barrier method. Okay. So next we will be starting from barrier method and then we will discuss about IUDs. Now starting with barrier methods. तो barrier methods में मेल के लिए कौन सी barrier methods है, फीमेल के लिए कौन सी है? So we'll discuss about that. The very first is males के लिए होते हैं condoms and they are made up of rubber like material that is of latex sheet. ये MCQ आपको पूछा जा सकता है, right? Sometimes if easy paper होता है तो. And it is used for covering the penis region. अब penis cover हो जाता है तो जो semen होता है that actually gets collected into this condom and this is very disposable, like reusable and disposable. Next is female. In female there are femidums, right? So these are basically female condoms and it is also made up of rubber like material. Okay. So all देखो यहाँ से एमसीक्यू नहीं आता है, ये लेटेक्स शीट वाला एमसीक्यू आता है एंड व्हाट इज कलेक्टेड दैट सीमेन इज कलेक्टेड. ये दो आ सकते हैं. वेल ये तो नहीं पूछा जाएगा एमसीक्यू में सीमेन इज कलेक्टेड, बट ये कई बार आ जाता है. रबर लाइक मटेरियल दैट आल्सो समटाइम्स आस्क. एंड ये जो फीमेल वाला है उसमें आपको ये नहीं पूछते. दिस इज एक्चुअली आई गेस नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो मैंने दे दिया. एंड ये एक्चुअली नीट में आता है. हियर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द cervix region by blocking the entry of sperms. So you have to write this 3, that is diaphragm, cervical caps and vaults. क्या होते हैं? ये भी रबर के ही बने हुए होते हैं which is entered into the female reproductive tract to cover cervix and जिससे कि क्या होता है, अब cervix cover हो जाएगा तो block हो जाएगी entry of sperms so that fertilization ना हो. हमारे ये जो methods है उनका काम ही क्या है? contraception करवाना, यानी कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करवाना. सो ये सारी मेथड क्या करती है? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करवाती है. सो अब जो नेक्स्ट हम करने वाला है दैट इज आईयूडीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में. आईयूडीज मींस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एंड as the name is suggesting कि uterine devices मतलब it is inserted in the uterus, right? So आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है in many cases that what is used to cover cervix. So you have to go for diaphragm, vaults and cervical caps which we have studied earlier. But अगर आपसे पूछते हैं that what is used in uterine, then you have to go for IUDs. And these are always done by doctors. Devices inserted in the uterus to vagina, as I said. And IUDs जो होता है वो 3 तरीके के होते थे. When I used to learn, मैं इसको ऑर्डर में ही याद रखती थी. That first is non medicated, दूसरा कॉपर रिलीजिंग एंड थर्ड विल बी हार्मोन रिलीजिंग. तो
अभी इसके मैंने डेफिनेशंस नहीं लिखी है दैट व्हाट हैपेंस इन इट, क्योंकि आपको पता चल जाना चाहिए। नॉन मेडिकेटेड मीन्स विच इज नॉट, यू नो, विच इज नॉट, मतलब मेडिकेटेड होता है, बट यू हैव टू गो विद द डॉक्टर। देन कॉपर रिलीजिंग मतलब कहीं ना कहीं कॉपर का यूज हुआ होता है उसमें। हार्मोन रिलीजिंग विच एक्चुअली रिलीजेस हार्मोन, नेम्स आर आल्सो सजेस्टिंग व्हाट इज हैपनिंग देयर। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एवरी टाइम आएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हैव टू लर्न दिस के नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लिप्स लूप, ये याद रहना चाहिए। कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ये बहुत बार एमसीक्यूज में एंड मैचिंग में आएगा ही आएगा, सो यू शुड रिमेंबर दिस। एंड ये भी याद रखना है हार्मोन रिलीजिंग का प्रोजेस्टेरोइड एलएनजे 20। ये तीनों, ये पांच जो एग्जांपल्स है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे कि ये वाला जो है प्रोजेस्टेरोइड एलएनजे 20 वो हार्मोन रिलीजिंग ही है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये आएगा। अब नॉन मेडिकेटेड का काम क्या है, तो ये फेगोसाइटोसिस करता है स्पर्म्स की विद इन द यूट्रस। मतलब फैगोसाइटोसिस वर्ड सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए खा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, जो फेगोसाइटोसिस हो जाते हैं स्पर्म्स को खा जाता है। द नेक्स्ट इज कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग यानी कि कॉपर का कोई ना कोई रोल होगा। तो कॉपर का यहाँ पे क्या रोल है, तो ये सप्रेस कर देता है किसको, मोटिलिटी को एंड फर्टाइल कैपेसिटी को। जितने कम मोटाइल स्पर्म्स होंगे उतनी ही कम कैपेसिटी होगी फर्टिलाइजेशन की। तो वो यही हो रहा है, कॉपर क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर दे रहे हैं मोटिलिटी को ऑफ स्पर्म की। ओलिगोस्पर्मियोसाइड में जो होता है वो होता है विद दिस ऑल्सो। नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच एक्चुअली मेक्स द यूट्रस अनसस्टेनेबल एंड द सर्वाइक्स हॉस्टाइल। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, बट यू शुड ऑल्सो राइट दिस, कि सर्वाइक्स को हॉस्टाइल बना देता है एंड यूट्रस को अनसस्टेनेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन होता ही नहीं है, म्यूकस थिक हो जाता है बेसिकली in this cases. So yeah, these are all these things which you need to remember। and बहुत important एक MCQ है जो इस पूरे टॉपिक में से पूछा जाता है, that is it is the most widely accepted contraception in India, right? It is the most widely accepted contraception in India, so you have to remember this also। so thank you so much। Next video में we'll cover about oral contraceptive।